شہر میں گینگ وار کو سر اٹھانا مہنگا پڑ گیا۔ کماڑی میں گینگ کا نیٹ ورک پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پرانا گولی مار سے گرفتار 6 منشیات فروش درجنوں مقدمات میں مطلوب نکلے۔ ایس ایس پی کماڑی کے مطابق ملزم سپاری لے کر کسی کو بھی قتل اور اغوا کر لیتے تھے۔ شہر میں گینگ وار کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا گیا۔ پرانا گولی مار سے گرفتار 6 منشیات فروش درجنوں مقدمات میں مطلوب نکلے۔ گزشتہ روز 2 زخمی سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان قتل، اقدام قتل، اغوا، منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ایس ایس پی کماڑی کے مطابق ملزم علی بخش 10، قاسم 8 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم جہانزیب 11، عمران 5، شہروز 7 اور فرید 3 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ایس ایس پی کماڑی فیضان علی کے مطابق ملزمان کے خلاف قتل، اقدام قتل اور منشیات فروشی کے مقدمات قائم تھے۔ ملزمان سپاری لے کر کسی کو بھی قتل یا اغوا کر لیتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 4 پستول، 8 mm رائفل اور 4 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ ملزمان کے قبضے سے 8 کلو سے زائد چرس اور بڑی مقدار میں آئس و کرسٹل بھی برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق گینگ وار جہانگیر گولڈن گروپ سے ہے۔ پارکنگ مافیا کے خلاف کمشنر کراچی نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ جلد بڑا کریک ڈاؤن ہوگا، کانٹریکٹرز کے اجازت نامے بھی منسوخ ہوں گے۔ تاجر برادری اور شہریوں نے بھی کمشنر کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں غیر قانونی پارکنگ مافیا کے دن گنے جا چکے، جلد گرینڈ آپریشن کا آغاز ہوگا۔ کمشنر کراچی کے حکم پر بلدیاتی ادارے حرکت میں آ گئے۔ شہر بھر میں 230 پارکنگ موجود ہیں۔ 130 سے زائد پارکنگ مصروف ترین گزرگاہوں پر قائم ہیں۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ غیر قانونی پارکنگ موجود ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سرکاری فیس کے بجائے سرعام منمانی فیس وصول کی جاتی ہے۔ فیس نہ دینے کی صورت میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چوری بھی ہو جاتی ہیں۔ گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر ہمیں وہاں سے جا کے چھٹوانی پڑتی ہے گاڑی اپنی، اس کے 200 روپے چارجز ہیں الگ ہیں، اور یہاں سے کافی دور ہے وہ ڈسٹینس، تقریباً کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر ہے۔ پارکنگ اگر نہیں دیتے تو یہ ہے کہ وہ ایک تو گاڑی لگواتے نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں پارکنگ دو، یا پھر کراس کا نشان لگا دیتے ہیں جس سے ہماری گاڑی ہمیں بعد میں ملتی نہیں ہے۔ اسٹار سٹی مال کے اطراف بھی غیر قانونی پارکنگ اور من مانی پارکنگ فیس وصولی پر شہری پھٹ پڑے۔ دیکھیں، کمشنر کراچی کو چاہیے خود آئیں، وزٹ کریں، یہاں کے دیکھیں، اور کچھ ایسے نمائندے اپنے کھڑے کریں، کچھ اہلکار ایسے کھڑے کریں جو اس پہ کنٹینیو نظر رکھیں، اور کم از کم 5 بجے کے بعد وہ آئیں اور اس کو دیکھیں۔ ہم جب بولتے ہیں بھائی 30 روپے لے لو، 40 روپے لے لو، تو یہ خود بولتے ہیں پیچھے تو ہم لوگ 10-20 روپے دیتے ہیں، تو یہاں 50 روپے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے بائک یہاں سے ہٹائیے۔ اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں۔ ادھر تاجر برادری نے بھی کمشنر کراچی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ صدر الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال ایسوسی ایشن کے صدر فہیم نوری بولے، مافیا کی جانب سے پارکنگ فیس سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کی جا رہی ہے۔ شہر میں پارکنگ مافیا اور ٹریفک پولیس کے کچھ عناصر کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہاں پہ سیکٹریٹ کی گاڑی جو ہے نا وہ لفٹ کر کے لے جا ہی نہیں سکتی، لیکن آپ اٹلری میدان تھانے میں جائیں نا تو یہاں کی اٹھی ہوئی گاڑی جو ہے وہ سیکٹریٹ تھانے کی چوکی سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سیکٹریٹ۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کمشنر کراچی کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی اور مختلف ٹاؤنز کی جانب سے جلد پارکنگ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں کی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ دھوکے سے بلیک لسٹڈ آئی فون کیوں فروخت کیا؟ موبائل 6 ماہ بعد ہی خراب ہونے پر صارف کا کنزیومر کورٹ سے رجوع، موقف اپنایا، پیسے اصل کے دیے، موبائل بلیک لسٹڈ تھما دیا گیا۔ فون واپس کیا تو پیسے ملے نہ ہی موبائل، ذہنی اور مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، 20 لاکھ روپے ہرجانہ دلوانے کی استدعا۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تگڑی سفارش یا حکام بالا کی نوازشات، ایک سرکاری ملازم 6 سیکشن افسران کی سیٹوں پر براجمان۔ محکمہ ماحولیات و موسمی تبدیلی میں 17 گریڈ کے 6 سیکشن افسران کی سیٹیں خالی، 6 سیٹوں کی ذمہ داری فیلڈ افسر سیف گارڈ اسپیشلسٹ کے سپرد۔ عبداللطیف سنجرانی کو نگران دور میں پابندی کے باوجود ڈیپوٹیشن پر تعینات کیا گیا۔ آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ۔ سفارش یا حکام بالا کی خصوصی نوازشات، ایک سرکاری ملازم 6 سیکشن آفیسران کی سیٹوں پر براجمان۔ محکمہ ماحولیات موسمی تبدیلی و ساحلی ترقی میں 17 گریڈ کے 6 سیکشن آفیسران کی سیٹیں خالی، تمام سیٹوں کی ذمہ داری فیلڈ آفیسر سیف گارڈ اسپیشلسٹ عبداللطیف سنجرانی کے سپرد۔ عبداللطیف سنجرانی محکمہ ماحولیات موسمی تبدیلی و ساحلی ترقی میں سیف گارڈ اسپیشلسٹ تعینات ہیں۔ ان کو نگراں حکومت کے دور میں پابندی کے باوجود ڈیپوٹیشن پر تعینات کیا گیا۔ 4 اکتوبر 2023 کو عبداللطیف سنجرانی کی خدمات محکمہ ماحولیات کے سپرد کر دی گئی تھیں۔ سابق سیکرٹری ماحولیات آغا باسط
आसिफ अब्बास ने नवंबर 2023 को अब्दुल लतीफ संजरानी को सेक्शन ऑफिसर माहौलियात तैनात किया। डेपुटेशन पर तैनात नॉन कीडर फील्डर ऑफिसर पर खुसूसी नवाजिश जारी। नॉन कीडर फील्ड ऑफिसर को 6 कीडर सेक्शन अफसरान के ओहदे सौंप दिए गए। डेपुटेशन की 1 साल की मुद्दत 4 अक्टूबर 2024 को खत्म होगी। मुद्दत खत्म होने के बावजूद फील्ड ऑफिसर का पूरे महकमे पर राज बरकरार है। आजाद नोडियो, सिटी 21। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का बहरान। ग्रेड 19 के 30 अफसरान के ओहदे खाली, सूबे के इंतजामी उमूर मुतासर। आज़ाद नहोड़ियों की रिपोर्ट। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान के इंतजामी बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अहम इंतजामी ओहदे 11 रोज से खाली पड़े हैं। 4 नवंबर के बाद 19 ग्रेड की असामियों पर नए अफसरान की तैनाती अभी तक न हो सकी, जिससे सरकारी इदारों का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। 19 ग्रेड के 30 अफसरान 4 नवंबर को 4 माह की तरबियत के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद इनके ओहदे खाली हैं। तरबियत पर जाने वालों में एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर 1 शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल तालीम खास और डायरेक्टर जनरल हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी शामिल हैं। इसके अलावा डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, MD वासा हैदराबाद, डायरेक्टर महकमा बराए इंसानी हुकूक, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समाजी बहबूद और वजीर आला सेक्रेटरीट के एडिशनल सेक्रेटरी जैसे अफसरान के ओहदे खाली पड़े हैं। इस बहरान के बाद सरकारी इदारों का इंतजामी ढांचा बेतरतीब हो चुका है और खाली ओहदों पर इजाफी चार्ज भी किसी दूसरे अफसर को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सूबे की कारकर्दगी में मुश्किलात आ रही हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। मुख्तलिफ अदालतों में होने वाली अहम समातों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। एजुकेशन में रूल्स के खिलाफ ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए असिस्टेंट की भर्तियों का अमल रोक दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने महकमे कॉलेज एजुकेशन की 50% 125 असामियां खाली रखने की हिदायत कर दी। जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल की 2 एसोसिएट प्रोफेसर को हटाने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर भट्ट और डॉक्टर इरम बुखारी को हटाने के अहकामात मुअत्तल कर दिए। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर से 5 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। साकनान शहर कायद आलमी मुशायरा के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट ने मुशायरे के इनेकाद पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरख्वास्त में महमूद अहमद खान और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। अदालत ने फरीकैन को 2 दिसंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए मजीद सरगर्मियों से रोक दिया। धमकियां देने और नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। गरबे की अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने ठट्ठा में महकमा जंगलात की जमीन से बेदखल के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा के खिलाफ इम्तनाए मनशियात में इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो गई। लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमला और इक़दाम कत्ल केस। अहम गवाह पुलिस एहलकार ने गैंग वॉर सरगना उजैर बलोच को शनाख्त कर लिया। मुकदमे की गवाह पुलिस एहलकार ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सिंध हाई कोर्ट में खैराबाद से लापता शहरी मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में KMC का सबसे बड़ा मुर्दा खाना तैयार कर लिया गया। मुर्दा खाने में 58 मैयतें बैक वक्त रखने का इंतजाम। मेयर कराची कहते हैं कि मुर्दा खाना के साथ अस्पताल में मजीद सहूलतों को बेहतर करेंगे। फरहान खान की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची का अहम मंसूबा। KMC का सबसे बड़ा मुर्दा खाना तैयार। 58 मैयतों पर मुश्तमिल मुर्दे खाने का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। अस्पताल में सहूलियात का जायजा लेने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने हंगामी दौरा किया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि 3 साल से अस्पताल में सहूलियात का फुकदान था। मुर्दा खाना के साथ अस्पताल में मजीद सहूलियात को बेहतर करेंगे। एक सर्द खाने की जो कि बदकिस्मती के साथ बंद पड़ी हुई थी, किसी ने उसको चलाने की कोशिश नहीं की, हमने उसको भी एक्टिवेट कर दी है। 58 बॉडीज़ जो हैं उसको हम रख पाएंगे। यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी सिंध हुकूमत का कि उन्होंने इसको सोलराइज़ करने की भी मुझे कमिटमेंट की है और मुझे बताया गया कि इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में इसको सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बाबर खान ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर्स की किल्लत को मेयर कराची ने जल्द खत्म करने की यकीन दहानी कराई है। हम फैसिलिटीज ज़्यादा दे रहे हैं। अब बच्चों का वार्ड खोला, पीट्स का वार्ड खोला, हम लोगों ने उसमें नर्सरी भी खोली है। कोशिश करें कि नर्सरी खोलने और उसको चलाने के रन करने के लिए जो भी हमें दिक्कत आ रही है वो मेयर साहब ने आपको क्लियर कर दिया कि हम फंड देंगे और हम पूरा काम करके देंगे आपको। मुर्तजा वहाब ने मजीद बताया कि अस्पताल में मुर्दा खाना के साथ मैयत के गुस्ल की सहूलियात जल्द मुहैया करेंगे। लोड शेडिंग से बचाव के लिए सोलर सिस्टम भी लगवाएंगे। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिटी 21 की काविशों से तारीखी विरसा ग्लोब मसमारी से बच गया। जिना टाउन इंतजामिया ने माहिरीन की मदद से
दुनिया के नक्शे को एक्सपोर्ट सेंटर के अक़ब में नस्ब करने का फैसला कर लिया। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। सिटी 21 की काविशें रंग ले आईं। इस्लामिया कॉलेज के सामने नफ्स तारीखी विरसे ग्लोब को मिसमारी से बचा लिया। टाउन इंसामिया ने ग्लोब को एक्सपो सेंटर के पास मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। मुनफरिद कुर्राए अर्ज के नमूने को 1964 में तामीर किया गया था, जिसकी बदौलत ग्लोब को दुनिया के नक्शे वाली चौरंगी के नाम से जाना जाता है। टाउन इंसामिया के मुताबिक अब इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और ग्लोब को एक्सपो सेंटर के अक़ब में वाक़े पार्क में नफ्स किया जाए, जिसके लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही हैं। टाउन ने एक अच्छा फैसला किया है कि यहाँ से इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए कि कोई पहले आप शनाख्त बनाएं, कोई अहम चीज़ बनाएं, उसके बाद उसको तोड़ फोड़ कर दी जाए या उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। तो बहरहाल मैं इस पर खारिज तशरीह पेश करता हूँ और इस तरह हमें अपनी कराची की शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए। शहरियों ने भी टाउन इंसामिया के इक़दाम की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि तारीखी विरसा तबाही से बच जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, बहुत ही उनका अच्छा इक़दाम है और ये क्रिएटिव माइंड है। ज़ाहिर सी बात है अगर वो इस तरह से कर लेंगे, ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतरी हमारी तरफ हो सकती है। मैं तो उसको कहूँगा ये बहुत ही यादगार थी, क्योंकि मैं खुद इस्लामिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो इसका ये ख़बर सुन के हमें बड़ा अफसोस हुआ था और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है और मैं कहूँगा कि टाउन का ये बहुत अच्छा फैसला है। ग्लोब ऑफ फवारे किसी दौर में मज़ार कायद के नज़ारे को चार चांद लगाया करते थे। ग्लोब पर कई यादगारी फिल्मी गाने भी फिल्माए गए। रेड लाइन BRT के रूट में आने के बाइस ग्लोब को मिसमार करने का फैसला किया गया, जिस पर सिटी 21 ने भरपूर आवाज उठाई थी, जिसके बाद टाउन इंसामिया ने मैदान में आकर ग्लोब को महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए। कैमरामैन झाजिब खान के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही अंडे शहरियों की दस्तरस से बाहर। एक हफ्ते के दौरान अंडे 20 रुपए फी दर्जन तक महंगे हो गए। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई का वार शहरियों के लिए नाश्ता भी दुश्वार। अंडे महंगे हो गए। होल सेल में फी दर्जन अंडे 340 रुपए तक दस्तयाब। एक अंडा 28 रुपए में फ़रोख्त। रिटेल में अंडे 20 रुपए इजाफे से 350 रुपए दर्जन तक जा पहुँचे। रिटेल में एक अंडा 30 रुपए का हो गया। फी दर्जन अंडों की होल सेल सरकारी कीमत 296 रुपये और रिटेल में सरकारी कीमत 304 रुपये मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि अंडे महंगे होने की वजह से ख़रीदारी कम कर दी। अंडे देख सकता हूँ, ख़रीद नहीं सकता। 350 रुपये दर्जन हो गए। ये महंगाई, गरीब आदमी महंगाई में क्या खाएगा। अंडे की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये या 200 रुपये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 350 रुपये तक। ये मेरा ख्याल है सर्दियाँ होंगी तो ये 400 450 तक जाएंगी। दुकानदारों का कहना है कि अंडों की कीमतें पोल्ट्री फार्मर्स बढ़ा रहे हैं। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से अंडा महंगा हो रहा है। सर्दी की वजह से अंडा महंगा हो रहा है। सही है। पहले अंडा सस्ता था, अभी महंगा हो रहा है, क्योंकि फार्म वाला अपनी मर्जी से रेट खो रहे हैं, उनके अपनी मनमानी के रेट होते हैं। अंडों की सरकारी कीमतें मुकर्रर होने के बावजूद मनमानी कीमतों पर फ़रोग़ ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद कोपहमा असद अली कहते हैं कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन को सर करने के लिए रवाना हो रहा हूं। इस खेल को कोई ज़्यादा नहीं देखता, अवाम की इस तरफ तवज्जो मजबूल कराना चाहता हूं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। नौजवान कोहे पेमा का नया अज़म। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कोहे पेमा असद अली मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को सर करने का इरादा है। माउंट विसन पर कम से कम दर्जा हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब तक सिर्फ 4 लोगों ने इस चोटी को सर किया। 2 साल चोटी को सर करने की तैयारी की है। 5 साल पहले मैंने किसी को कहा था कि जी मैंने एवरेस्ट सर करना है, तो बजाय उसको सीरियस लेने के उन्होंने वो मजाक में डाल दिया कि जी कराची से तुम कैसे जा सकते हो। अब जब मैंने 5 साल बाद वो एक चीज़ प्रूव की कि जो मैं कह रहा था, अगर आप मुझे सपोर्ट करते तो शायद ये 5 साल वाली बात 3 साल में मैं कर लेता। असद अली मेमन का कहना था कि माउंट नसन दुनिया का सरतरीन मकाम है। 6 साल से बर्फ और सर्दी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। कराची में आप कर ही नहीं सकते, तो मुझे मजबूरन स्कर्दू जाना होता है। मैं 1 महीना पहले स्कर्दू में था, जहाँ पे मैंने एक पहाड़ को सर किया सिर्फ इस बेसिस पे कि मैं अंटार्कटिका जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कोई ठंड से जो है ना वो मुश्किलात ना हो। कराची में रहाइश में रहते हुए यहाँ पे ठंड का आपको एहसास भी नहीं है। जब आप यहाँ से एकदम से निकल के किसी पहाड़ पे जाते हैं तो वो इटसेल्फ अ चैलेंज है और वो आपकी बहुत सी मुश्किलात का वजह बनती है। असद अली मेमन कहते हैं कराची में रहकर तैयारी नहीं कर सकता था, इसलिए स्कर्दू गया।
अल्लाह मुझे सफ़र में कामयाब करे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। गुलशन इकबाल के फुटबॉल ग्राउंड में वहाज हुसैन स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला सजाया गया। इस हवाले से मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। तलबा को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रखने का अज़्म, वहाज हुसैन स्कूल ने गुलशन इकबाल में स्पोर्ट्स गाला सजाया। स्पोर्ट्स डे के मौके पर नन्हे तलबा और तालिबात ने खूबसूरत टैबलो पेश करने के साथ ताइक्वांडो का भी मुजाहिरा किया। इवेंट के मेहमान खुसूसी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली का कहना था कि स्कूल के साथ मिलकर इवेंट कराएंगे। स्कूल के रूह रवा वहाज हुसैन का कहना था कि स्पोर्ट्स डे कराने का मकसद बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी आगे लाना है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा का कहना था कि हर साल होने वाले इवेंट में बहुत इंजॉय करते हैं। स्पोर्ट्स वाले के अंदर हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके लिए साल ट्रेनिंग करते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मुझे मेरी बहन खड़ी है, वो भी कराची ओपन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो हमें ताइक्वांडो सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाता, हमें डिसिप्लिन सिखाता है। स्पोर्ट्स डे के मौके पर तलबा के दरमियान जंप और रिंग रेस समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। पोजीशन हासिल करने वालों को मेहमान खुसूसी ने मेडल्स दिए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।